اعمال کی کتاب ہے کیا؟ اعمال کی کتاب روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی کتاب ہے، اور اس میں وہ باتیں ہیں جو رسول اور یسوع پر ایمان لانے والوں نے جب روح القدس سے معمور ہو گئے تو انہوں نے روح کی تحریک میں کیا کچھ کیا اور اس کے کیا کیا ریزلٹس آئے، ان سب چیزوں کی ہسٹری اعمال کی کتاب ہے۔ اس لیے اعمال کی کتاب کو چرچ ہسٹری کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کہا جاتا ہے، اندازہ ہے کہ 30 سال کی ہسٹری ریکارڈ ہے، اور یہ 30 سال کی ہسٹری وہ سال ہے جب یسوع آسمان پر ان کی آنکھوں سامنے اٹھایا گیا، اور اس کے بعد کے 30 سال جو کلیسیا نے گزارے، جو شاگردوں نے گزارے، اور شاگردوں نے یسوع مسیح کے بعد کیسے خدمت کی اور کیسے خدا کے کام کو پھیلایا، ان ساری چیزوں کا ریکارڈ ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے۔ اعمال کی کتاب کا مصنف لوکا طبیب ہے، اور لوکا کی کتاب ایک ہی ہے جس میں اس نے لوکا کی انجیل لکھی، اور اس کی انجیل کا پارٹ 2 جو ان سے اعمال کی کتاب ہے، لیکن بعد میں اس کے 2 پارٹس کیے گئے، حالانکہ یہ ایک ہی پورشن تھا، ایک ہی ایڈیشن تھا، لیکن اس کی پارٹیشن کی گئی کیونکہ لوکا کی انجیل جو سی ہے واضح طور پر یسوع کے بارے میں، اور جو اعمال کی کتاب ہے یسوع کے بعد کے بارے میں، واقعات کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ اس لیے اس کو اعمال کی کتاب کو سیپریٹ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور صدیوں سے رائج ہے کہ ہم اسے ایک سیپریٹ کتاب کے طور پر اپنی بائبل کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کی ایک اور اہمیت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اعمال کی کتاب میں جب بھی آپ پڑھیں گے اس کو 2 میجر چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک چیز آپ کو اس میں روح القدس نظر آئے گا، اور دوسرے خدا کے کلام کا پرچار۔ آپ اعمال کی کتاب کو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ضرور گھر جا کے سٹارٹ کیجیے گا، کیونکہ آج اعمال کی کتاب کے پہلے 6 چیپٹرز میں کوشش کروں گا کہ انہیں میں کور کروں۔ اعمال کی کتاب کہ میں 2 چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی، پہلی روح القدس ہے اور دوسری خدا کے کلام کا پرچار ہے۔ آپ جب بھی اسے پڑھیں گے آپ کو یہ چیزیں نمایاں نظر آئے گی، اور اندازہ ہے کہ اعمال کی کتاب میں لفظ روح القدس 96 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 96 دفعہ استعمال ہوا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ اعمال کی کتاب کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اعمال کی کتاب اور لوکا رسول کا انجیلی بیان، ان دونوں میں ایک تسلسل بڑا کامیاب ہے، بڑا زوراور طریقے سے آپ کو ہٹ ہوگا۔ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کا مطالعہ کریں اور پہلی آیت سے سٹارٹ کریں تو آپ کو ہیکل میں لوگ دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے ہی ہو، اب پہلا چیپٹر کھولیے لوکا کی انجیل اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیے میرے ساتھ۔ آپ جلدی سے کھولیے لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے چیپٹر کو پڑھنا شروع کیجیے۔ اس کی پہلی چند آیات میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو لوگ ہیکل میں دعا کر رہے ہیں۔ انٹروڈکشن ہم شروع میں چونکہ بہتوں نے اس پر کور باندھی کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ان کو ترتیب پر بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود لکھنے والے، دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے موسیس تنیفنس میں نے مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھو، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ یہ اس کا انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن کے بعد جب لوکا طبیب اعمال کی کتاب یا لوکا کی انجیل کا سٹارٹ لے رہا ہے تو یہاں پر پڑھیے بادشاہ میں یہودا کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد سے تھی، اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے جو راست باز اور خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کی اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا 5 تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کی حضور اپنی فریق کی باری پر کہانت کا انجام دیتا تھا، ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا پورا نکلا کہ کتاب مقدس کہ خداوند کے مقدس میں جا کر بخور جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ اسے انڈرلائن کیجیے، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لوگوں کی ساری جماعت کیا کر رہی تھی؟ باہر۔ لوکا کی کتاب کا سٹارٹ دعا ہے،
سٹارٹ میں ہی اگر لوکا کسی چیز پر ایمفسائز کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا. وہ خدا سے باتیں کرنے پر زیادہ اس کی توجہ ہے. اب اسی کے آخری چیپٹر کو کھولیے میرے ساتھ. 24 باب پر مشتمل یہ لوکا کی انجیلی بیان ہے. اور اس کی آخری آیت کو پڑھیے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 53 آیت کو میں پڑھ رہا ہوں. لوکا کی انجیل کے آخری چیپٹر 24 باب اور اس کی 53 آیت کو میں پڑھ رہا ہوں. اسے پڑھیے. یہاں پر لکھا ہے اور ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. اما لوکا کی کتاب کا آغاز بھی دعا ہے. ہیکل سے سٹارٹ ہے اور اینڈ بھی کیا ہے؟ ہیکل ہی ہے. مرکزی خیال اگر لوکا کی انجیلی بیان یا اعمال کی کتاب ہے تو وہ کیا ہے؟ خدا. کیا ہے؟ خدا. اور خدا کیا ہے؟ کلام. اور اس کے کلام کا پرچار ہی اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے. اب میرے ساتھ اعمال کی کتاب کو کھولیے. اعمال کی کتاب کا مصنف بھی لوکا طبیبی ہے. اور میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا کہ یہ ایک ہی جلد تھی جسے بعد میں ڈیوائڈ کیا گیا. اعمال کی کتاب کے بارے میں ایک اور خیال یہ ہے کہ غالباً لوکا رسول لوکا یسوع کا شاگرد نہیں تھا. جو مصنف ہے اعمال کی کتاب کا لوکا وہ یسوع کا شاگرد نہیں تھا. یہ پولوس سے انسپائر ہوا تھا. یہ پولوس رسول کی خدمت کا پھل تھا. جب پولوس یونان میں جاتا ہے اور ایتھنے میں جا کر کلام کی منادی کر رہا ہے. اعمال 17 باب میں آپ کو ایتھنے میں جا کر پولوس کی منادی کا ذکر ملے گا کہ جب وہ ایتھنے میں جاتا ہے تو ایتھنز جو ہے موجودہ یونان. اعمال 17 باب میں یہ ذکر ہے. پولوس جب یونان میں پہلی دفعہ جاتا ہے تو وہاں پر لکھا پولوس کا دل ان کے بتوں کو دیکھ کر بھر گیا کیونکہ وہاں پر شہر میں اتنے لوگ نہیں تھے جتنے بت تھے. ایک ایک گھر میں 50 بت تھے. اولاد کا بت الگ تھا, برکت کا بت الگ تھا, اناج کا بت الگ تھا, روزگار کا بت الگ تھا, بیماری سے بچاؤ کا بت الگ تھا. ایک ایک گھر میں 50 100 بت لوگوں نے رکھے ہوئے تھے اور ہر بت کی ہر وقت پر پرستش ہو رہی تھی اور یہ شہر بتوں سے بھرا ہوا تھا. اس بت پرست معاشرے میں جنم لینے والا لوکا طبیب, حالانکہ بائی پروفیشن یہ ایک ڈاکٹر تھا. He was a medical surgeon. اس کی کوالیفیکیشن آج کے میڈیکل سرجن کے برابر تھی. یہ ایکسپرٹ تھا اور یونان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علم اور تہذیب کا گہوارہ تھا. اگر کسی نے کچھ نالج حاصل کرنا ہے, سیکھنا ہے تو پوری دنیا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹیز اس وقت یونان میں تھی. اور اس وقت کے دور میں لوگ آپریشن کیا کرتے تھے. لوگوں کا پتھری کا بھی آپریشن ہوتا تھا, اپینڈکس کا بھی آپریشن ہوتا تھا. اب امیجن اس زمانے میں جب سرنج کا کانسیپٹ نہیں تھا اور بازو کا اگر کسی کا کٹ جاتا تھا, سٹچز لگ جاتے تھے, کسی کو تلوار کا زخم ہو جاتا تھا تو اس پارٹ کو بھی سینے کی سرجری جو جراحی کا سلسلہ ہے انہی لوگوں نے شروع کیا ہوا. یونانی سٹارٹ یونانیوں نے لیا ہوا تھا. اس قدر نالج تھا لوگوں کے پاس. لیکن جب اس نے یسوع کو قبول کیا تو لوکا نے اپنی ساری میڈیکل ہسٹری کو, اپنے پروفیشن کو چھوڑ کر پولوس کے ساتھ ساتھ رہا. اور اندازہ ہے کہ اس نے 20 سال پولوس کے ساتھ گزارے. 20 سال جام دن رات اس نے پولوس کے ساتھ گزارے اور پولوس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ لوکا نے تحریر کیے ہیں. اس میں پوری ہسٹری میں پوری اعمال کی کتاب اور لوکا کی کتاب کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں, سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کو انجیل مقدسہ لوکا کی انجیل پڑھاؤں گا دوسرے سال میں, لیکن ابھی اعمال کی کتاب میں پڑھا رہا ہوں. اس پہ غور کیجیے گا. جب آپ اس اعمال کی کتاب کو گھر جا کے پڑھیں گے تو آپ میں ایک لفظوں کی ترتیب نظر آئے گی. اگر آپ متی کو اور لوکا کی انجیل کو پڑھیں تو متی کی انجیل میں اتنی ترتیب نہیں نظر آتی, جبکہ لوکا کی انجیل میں ایک ترتیب نظر آتی ہے, سیکوینس نظر آتا ہے, واقعات کا, حالات کا سلسلہ وار. اور یہ سلسلہ اعمال کی کتاب میں بھی ہمیں نظر آئے گا کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوا, کیسے چلا. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے. لیکن لوکا کے نالج کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن جب اس نے یسوع کو قبول کیا تو اس نے سٹارٹ میں بتایا کہ پہلے اس سے پہلے بہت ساری انجیلیں لکھی گئی تھی. جو سب سے پہلی انجیل لکھی گئی ہے بائبل مقدس میں وہ مرکز کی انجیل ہے.
یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 56 صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی، 56 سے 60 قبل بعد از مسیح جو سینچری جو کاؤنٹ کر رہے ہیں نا، جو 2 ایراز ہیں، بیفور کرائسٹ اینڈ آفٹر. لاسٹ کلاس میں پاسٹر سیمسن سہیل نے آپ کو بتایا ہوگا اوٹیس کے سوالے میں کہ بی سی اور اے ڈی کا کیا مطلب ہے. یسوع مسیح کے بعد کا جو دور ہے وہ اے ڈی میں آتا ہے. آفٹر ڈومینک ایسی طرح کا ورڈ ہے، کیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا. آفٹر ڈومنا کے اس طرح ہے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد. تو یہ یسوع مسیح کے جانے کے 52 سال کے بعد، 56 سال کے بعد مرکز کی انجیل پہلی انجیل تھی جو لکھی گئی تھی. لیکن یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ بائبل سروے جو پاسٹر سکسن کروا رہے ہیں وہ آپ کو لکھوا دیں گے. اس کے بعد متی رسول انجیل لکھی، اور سب سے آخر میں لوکا نے لکھی ہے. اور یہ انجیل اور اعمال کی کتاب سن 72 عیسوی میں 68 سے 72 کے درمیان لکھی گئی. اب ان 72 سال پرانی باتوں کو لوکا ایسے سیکوینس سے ترتیب دے رہے ہیں کہ جب آپ اس انجیل کو، اس اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم وہیں کے اسی معاشرے کے لوگوں میں وہیں پہ پھر رہے ہیں. یہ لکھاری کی خوبصورتی ہے اور اس کے لفظوں میں اتنی ترتیب ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوکا کے پاس ایجوکیشن لیول اور انڈرسٹینڈنگ اور حالات پر کس حد تک گرپ تھی. اور سب سے بڑی خوبصورت بات، اس انجیل کو لکھانے کے لیے لوکا کو ایک اسپانسر ملا جس کا نام تھیلوفیلس ہے. آپ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب اور پہلی آیت کو پڑھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے تھیلوفیلس میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا. تھیلوفیلس ایک بڑا مرکزی کردار ہے. یہ سوری میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے لوکا کی اور اعمال کی کتاب کو اسپانسر کیا. He was the main guy جس نے ساری انویسٹمنٹ کی، کیونکہ پرانے وقتوں میں پیپر موجود نہیں تھے کہ پیپراں سے لکھا جائے. اس وقت ایک بڑے بڑے پتے ہوتے تھے، پائپرس کے پیج ہوتے تھے، ایک پودا ہوتا تھا جو مصر سے امپورٹ کیا جاتا تھا. اس کو سکھایا جاتا تھا اور سکھا کے پھر اس پر لکھائی کی جاتی تھی، اور بڑے مہنگے ہوتے تھے، وہ سستے نہیں تھے پیپر. جو پائپرس کے پیجز تھے وہ بڑے مہنگے تھے، اس لیے ان کو فولڈ کر کے رکھتے تھے. ایک چیز جب باہر سے آتی ہے تو وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے خریدنی، تو اس کے لیے وسائل نہیں تھے. تو تھیلوفیلس روم کے بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا. خیال کیا جاتا ہے ہی واز دا فائنانس منسٹر. اس کے پاس خزانے کی کیبنٹ کا عہدہ تھا. اور آپ امیجن کریں کہ یسوع مسیح کی کلام کی سچائیاں اور اس کی قدرت کا کلام اس حد تک چلا گیا کہ بادشاہ کے محلوں تک یسوع کی انجیل پھیل چکی ہے. ہالیلویا. آپ غور کیجیے کہ ایک وقت کا وزیر خزانہ، آج ان کو کوئی کہے ہم بھائی صاحب جاؤ صاحب کسی منسٹر کو مل لو، تو وہ منسٹر ہمیں ملنے کے لیے ٹائم نہیں دے گا. اسے ملنے کے لیے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، مہینہ پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی. لیکن یہ منسٹر خود بائبل کو سپانسر کرے کہ آپ لکھیں، یسوع کے بارے میں لکھیں اور یسوع کے کلام کو دنیا تک پہنچائیں. تو پولس کی منادی کا امپیکٹ اس حد تک گہرا اور واضح تھا کہ منسٹر تک سپانسر کر رہے. اس لیے یہ شخص جس نے ساری انویسٹمنٹ کی، اس لیے لوکا سٹارٹ میں اس کا نام مینشن کر رہا ہے. دوسری چیز جو اعمال کی کتاب میں میں سکھانا چاہ رہا ہوں آپ سے، پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھے. یہاں پر کوئی پڑھ سکتا ہوں؟ پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھیے گا پلیز. تھیلوفیلس یہاں سے جی کو پڑھ رہے جی پہلا باب اس کی پہلی آیت پڑھیے پلیز. اعمال کی کتاب. میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصدیق کیا
जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। जब और कुछ इस पर अंडरलाइन कीजिए कि यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। यीशु क्या करता? शुरू में करता और सिखाता रहा। इस किताब का मेन फोकस ये है, इस किताब का लिखने का और इस किताब को पढ़ने का और इस किताब को सीखने का मरकजी ख्याल ही हर कलीसिया का और हमारा ईमानदार ये है कि जो कुछ यीशु सिखाता है वही हमने करना है और उसे साबित करना कि यीशु ने जो सिखाया है, जब हमने उस पर अमल किया है तो उसके रिजल्ट्स हैं। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा है, मौसर है और हर धौधारी तलवार से ज्यादा तेज है। The word of God is living, effective and result oriented. कि खुदा का कलाम जिंदा भी है और मौसर भी, इफेक्ट्स आते हैं इसके। जब आप कलाम को अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, और ये नहीं कि ये फेल हो जाता है। अब पतरस के पहला खत को पढ़े, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, घास मुरझा जाती है, फूल खिलता है, लेकिन खुदा का कलाम अब्दुल आबाद तक मेरे अजीजों जिंदा रहता है। प्लीज, इसलिए अमाल की किताब ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये किताब सिर्फ सिखाने नहीं बल्कि ये करवाना चाह रही है। ये किताब सिर्फ ये बताती नहीं है कि यीशु ने ये कहा हो गया, बल्कि ये प्रैक्टिकली बता रही है कि जब यीशु नहीं था तो उसके शागिर्दों ने भी यीशु का नाम लिया तो चीजें वकूफ पजीर होना शुरू हो गई। हालेलुया। आपको याद होगा अमाल 4 बाब में जन्म का लगना, वहां पर लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे हैं। अमाल 3 बाब उसकी पहली आयत को खोलिए, यहां पर लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त तीसरे पहर हैकल को तो फिर क्या हुआ? लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत खिलाता था, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। इसका काम ही यही था। लेकिन आगे क्या हुआ? जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। एज यूजुअल बात है, सबसे भीख मांगता है। लेकिन इस दफा क्या हुआ? यूहन्ना और पतरस ने ऊपर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की तवक्को पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने क्या कहा? चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। और वो क्या है? That's the power. वो पावर, वो कुदरत, जो कुदरत का लफ्ज है उसे इंग्लिश में पावर कहते हैं मेरे से। वो पावर पॉल लूका सिखाना चाह रहा है चर्च हमें, कलीसिया हमें, ईमानदारों हमें, स्टूडेंट्स हमें, कि देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में कुव्वत है, और ये कुव्वत सिर्फ यीशु के साथ नहीं चली गई, बल्कि ये कुव्वत आज कलीसिया में, आज ईमानदारों में, उसके बेटों बेटियों में तासीर कर रही है। और what did he do? उन्हें सिर्फ यही कहा, यीशु के नाम से उठ खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया और चलने फिरने लग पड़ा। यह अमाल की किताब बता रही। लेकिन क्यों चल रहा था? क्यों पतरस और यूहन्ना का ईमान इस कदर मजबूत था? उसकी बड़ी वजह हमने पहले बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ी है, जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उसको शागिर्दों ने इंप्लीमेंट किया। उसको शागिर्दों ने क्या किया है? इंप्लीमेंट किया। अब तीसरे बाब की पहली आयत को फिर से पढ़े। हाँ जी, पढ़े प्लीज प्लीज। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। दुआ के वक्त क्या कर रहे थे? पतरस और यूहन्ना हैकल में क्यों जा रहे थे? दुआ के वक्त। और ये कौन सा टाइम है? तीसरा पहर, मतलब आफ्टरनून का टाइम है, तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम है। इतनी दुआ? बंदा सुबह सुबह दुआ करता है, ये शाम को करता है, दोपहर नहीं लगे। Why? Because they were following Jesus. वो यीशु को फॉलो कर रहे थे। अब लूका के इंजील को खोले, चौथे बाब, वहां पर लूका रसूल यही बातें लिख रहा है कि यीशु अकेला पहाड़ों और जंगलों में दूर जाकर दुआ करता था।
5वां बाब और उसकी 15 और 16 आयत पढ़े। लेकिन उसका प्रचार ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए और उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। वो जंगलों में अलग जाकर क्या किया करता था? दुआ किया करता था। वो क्यों कर रहा था? हालांकि उसका तो चर्चा फैल रहा, तो वहां बैठ गया, लेकिन नहीं, जीसस ने, यीशु ने जो सिखाया वही अमाल की किताब में इंप्लीमेंट हो रहा है। जब शागिर्दों ने देखा कि यीशु क्या कर रहा है, जंगलों में अलग अलग जाकर क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है, तो उन्होंने भी क्या शुरू कर दी? क्या शुरू कर दिया उन्होंने? और दुआ करने के लिए जब वो चर्च जा रहे थे, हैकल में जा रहे थे, तो फिर मौजज़े ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गए। हालेलुया। अमाल की किताब इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। अमाल की किताब प्रैक्टिकल है। जो कुछ सीखा है शागिर्दों ने, जो कुछ समझा है, आप उनकी जिंदगी में उसका अमल देखिए। जब उन्होंने यीशु के फुटस्टेप्स को फॉलो किया। एक और हवाला खोलिए मेरे से, लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 14 आयत। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई और वो उन इबादतखानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और पहले 4 बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ो। फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह कुदस की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। और कीजिए, यीशु किसकी हिदायत से चल रहा है? कहां पर फिर रहा है? बियाबान में। यीशु का की काम है बियाबान। जंगलाज की काम है यीशु, लेकिन बिकॉज़ द होली स्पिरिट वाज लीडिंग हिम, रूहुल कुदस उसे तहरीक दे रहा था। और जब रूहुल कुदस उसे तहरीक दे रहा था तो वो कर रहा था। जब अमाल की किताब पहले बाब और उसकी 8वीं आयत को खोली, यहां पर क्या लिखा हो? जब वो खुदा के हुजूर अपने फिरके की बारी पर कहानत का काम अमाल पहला बाब। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा, यहां पर लिखा, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो फिर क्या होगा? तमाम यहूदिया और यहां तक मेरे गवाह। आज प्रॉब्लम यह है कि चर्च के अंदर इफेक्टिवनेस नहीं है। उसकी वजह यह है, हम गवाह तो हैं यरूशलेम में, सामिया में, यहूदिया में, जमीन की इंतहा तक, लेकिन रूहुल कुदस नहीं है। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, रूहुल कुदस के बगैर अमाल की किताब का लिखारी हमें आगे नहीं लेके जा रहा। वो पहला स्टेप यही बता रहे कि अगर आपने यीशु के नक्शे कदम पर चलना है तो यू नीड होली स्पिरिट। आपको पाक रूह चाहिए। और इनका रिएक्शन देखिए, 11वीं आयत को पढ़िए, अमाल की पहली बाब की 12वीं आयत से, सॉरी। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाने पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस, यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास, फिलिप्पस और थोमा और बरतमाई और मत्ती और हल्फाई का बेटा याकूब और शमौन जब्दियस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये क्या रहे? एक दिल होकर दुआ में मशगूल। और दुआ में क्यों मशगूल? Because they were following the footsteps of Jesus. वो यीशु के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने देखा था कि जब यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया
تو اس نے دعا اور روزے کے ساتھ آغاز کیا. تو اعمال کی کتاب میں شاگردوں نے بھی کیا کام شروع کیا؟ انہوں نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی. They don't start کہ یسوع نے ان کو پاور دے دی مخصوص کر دیتا جا کے ہاتھ رکھیں ہیلیلویا میں مخصوص ہو گیا ہیلیلویا میں چلا جاتا ہوں. نو اعمال کی کتاب ایمانداروں کے لیے آئینہ. اعمال کی کتاب ہمیں سکھا رہی ہے کہ یسوع نے تو زمین کی انتہا تک گواہی تو دینے کے لیے کہا ہے لیکن کب؟ جب روح القدس نازل ہو. اور یہ 120 کی جماعت روح القدس کے انتظار میں دعاؤں میں ٹھہر گئے کہ ہمیں پاک روح کی پاور ملے, ہمیں روح القدس ملے, اور روح القدس جب تک نہیں ملے گا ہم نہیں ہلے. میرے ساتھ لوکا 3 باب کو کھولیے. اور اس کی 21ویں آیت کو پڑھیے. جب یسوع لوگوں ہاں جی کوئی اور پڑھ لے. جب سب کے سارے گردونواں میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ نہیں 3 باب اور 21 آیت ہے. جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا. کیا ہوا؟ آسمان کھل گیا. اور کیسے آسمان کھلا؟ اور روح القدس آسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا. میں 21ویں آیت پڑھ رہی ہے. جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ کیا ہوا؟ میرے چیزوں کو اور کھینچیے. اگر خدا کا بیٹا دعا کر رہا ہے تو پھر ایمانداروں ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے؟ اگر خدا کے بیٹے کے دعا کرنے سے کہ کیے بغیر آسمان نہیں کھلتا تو آپ کیسے امیجن کر سکتے کہیں دعا بھی نہ کریے تو آسمان کھل جائے؟ اعمال کی کتاب ایمانداروں ہمیں یہی تو سکھا رہی ہے. یہ 120 لوگوں نے اپنا بزنس, اپنا لائف, اپنا پروفیشن, اپنی فیملی سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب یسوع دعا کرنے کے آسمان کے کھلنے کے لیے دعا کر رہا ہے تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے دعا کرنے کی. ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے خدا کے پاک روح کی رہنمائی حاصل کرنے کی. اس لیے اعمال کی کتاب بیسیکلی فوکس صرف ایک ہی بات پر کر رہی ہے, وہ ہے روح القدس اور خدا کے کلام کا پرچار. روح القدس کی ڈائریکشن, پاک روح کی تحریک میں چلنا. اور جب پاک روح کی تحریک میں یہ لوگ چلتے ہیں تو میرے ساتھ اعمال 2 باب کھولیے. کیا رزلٹس آتے ہیں؟ اور 40ویں آیت سے پڑھ رہے 41ویں آیت سے پڑھیے. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. آگے بھی پڑھیے. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. رک جائیے, غور کیجیے 2 آیات پر. ایک 41 آیت کو پھر سے پڑھیے. لکھا ہے بس جن لوگوں نے ان کو کلام کو قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 کے قریب ان میں مل گئے. سنگل سرمن, ایک ہی واحد دینے سے, ایک ہی سرمن سے 3000 لوگوں کا کراؤڈ صرف اکٹھا نہیں سی ہویا. یہاں پر تو 300 لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں 3000 نکل آنے. 3000 لوگوں کے درمیان میں پریچ کروں اور 3000 جڑے پریچ جنہاں سے کیتا انہوں نے بچے کتنے نے یہ نہیں پتا. کئی کھلو کے پھر بہ جاتے ہوتے ہیں میں کتوں کیا سی, میں نہیں بپتسمہ لینا, میں تو ایویں کھلوتا وہ تو میں شرم بھی کھلو نہیں سکتا, میرا تو یہ بڑے گناہ نے. نہیں, لکھا ہے اسی روز ایٹ دیٹ ٹائم فوراً
اور فوراً ہی بپتسمہ بھی لیا ہے اور چرچ میں شامل بھی ہو گیا. اگلی آیت میں لکھا ہے یہ رسولوں سے تعلیم پانے, رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے, دعا کرنے میں مشغول ہو گئے. انہوں نے کہا استاد جی صرف تمہارے نال دعا کرا گے, ہم بھی آپ کے ساتھ خدا کے آگے جھکیں گے, ہم بھی یہ روح القدس کی قدرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور لوکا بتا رہا ہے کیوں حاصل کرنا چاہ رہے, کیونکہ ہر شخص پر خوف چھا گیا تھا اور بڑے عجیب کام ہو رہے تھے اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے تھے. لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے, لوگوں کے اندر ڈر تھا. انہیں پتا تھا کہ اگر پاک روح نے اگر موو نہ کیا اور پاک روح نہ نازل ہوا تو ہماری زندگیوں کا بچاؤ, ہماری زندگی کی رکاوٹ نہیں ہے, ہمارا بچاؤ نہیں ہے. اسی کا ایک تجربہ اور اسی کا ایک کلک اعمال 5ویں باب میں ہمیں ملتا ہے. جب حنانی اور سفینہ نے خدا کے حصہ میں سے چوری کی تو کیا پطرس کو خواب آ گیا تھا؟ لکھا روح القدس. پطرس کہتا ہے تو نے خدا کے روح سے کیوں جھوٹ بولا, کیوں جھوٹ بولا؟ اور جیسے ہی کلام میں لکھا اس نے یہ بات کہی اس کی جان نکل گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی آتی ہے اور سفیرہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے. تو سفیرہ کو کیا کہہ رہا ہے, دیکھ تیرے شوہر کو دفن کرنے والے بھی واپس آئے ہیں, تم دونوں نے بدی میں ایکا کیا, کیوں نہ خوف چھائے؟ کیونکہ ایٹ اے دیٹ ٹائم فوراً ہی تو رزلٹس آ رہے, فوراً ہی پاک روح گناہ کی نفی کر رہا, فوراً ہی پاک روح ریئیکشن لے رہا. آج پاک روح ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہا؟ آج لوگوں کو چوٹ کیوں نہیں لگ رہی؟ اس کی وجہ کیونکہ چرچ پریئر لیس چرچ ہے. چرچ ابتدائی رسولوں کلیسیا کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کر رہا. جو پرنسپلز, جو اصول اور جو ڈسپلن یسوع نے واضح کیا ہم اس کو فالو نہیں کر رہے, اور جب ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تو پھر رزلٹس بھی اس کے مطابق نہیں آ رہے. اگر آپ نے اپنی لائف میں, اپنی فیملی میں, اپنے چرچ میں اور اپنی خدمت میں رزلٹس دیکھنے ہیں تو فالو دا بک آف ایکٹس, اعمال کی کتاب کی پیروی کیجیے, ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لیجیے اور دیکھیے گا ہر شخص پر خوف چھا جائے گا اور آپ کے وسیلہ سے عجیب نشان ظاہر ہوں گے. صرف بات یہیں پر نہیں رکتی, میرے ساتھ ایک اور حوالہ کھولیے. پانچواں باب اور اس کی 12ویں آیت. جی اعمال کی کتاب کی پڑھو. اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجائب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے. کن کے ہاتھوں سے؟ اور کیا عجائب کام ظاہر ہو رہے تھے اور کیوں ہو رہے تھے؟ آگے لکھا اور وہ سب ایک دن ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے, لیکن اوروں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے, مگر لوگ ان کی بڑھائی کرتے تھے. وائے لوگ ان کی بڑھائی کرتے تھے کیونکہ وہ دیور following the lead of Holy Spirit, روح القدس کی تحریک سے چل رہے تھے. وہ یہ نہیں تھے کہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے. اگر آپ کو روح القدس کی مرضی جاننی ہے رسولوں کی زندگی میں تو یہ حوالہ نوٹ کر لیجیے. 4 باب اعمال نہیں, ابھی میں ایک حوالہ نوٹ کروں. 4 باب اور اس کی 31 آیت کو پڑھیے. جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. کیوں سناتے رہے اور کیوں مکان ہل گئے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ہم اس پہلے 1 سے لے کر 5 سے 6 چیپٹرز آپ نے پڑھنے گھر جا کے کی اسٹڈی کیجیے گا, لیکن میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں ہل رہا. جب ان لوگوں نے جنم کے اندر لنگڑے کو چلانا شروع کر دیا تو شیطان حرکت میں آتا ہے. شیطان نے ریئیکٹ کیا, انہوں نے کہا تمہاری ضرورت میری بادشاہی کو تباہ کرو, کیونکہ وہ جانتا ہے کلام میں لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا.
पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अब उसे पता था कि इन्होंने काम मिटाने शुरू कर दिए, उसने रिएक्ट किया। चर्च की जो लीडरशिप थी, जो अपनी चुनाहट मांग रही थी, उन्होंने कहा तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई, तुम लोग को जाहिल हो, तुम्हारी तो क्वालिफिकेशन इतनी नहीं, खबरदार इनको कैद में डालो। उन्होंने एक दफा धमकाया, छोड़ देता, नहीं बात आई, दूसरी दफा फिर मनाती करे। उन्होंने कहा यकीनन उसे न्याय करना ही पैना। उन्होंने इनको कोड़े लगवाए, इनको मारा, पीटा और जेल में रखा। लेकिन ये लोग जेल में रुकने की बजाय जैसे जेल से बाहर आते हैं तो उन्होंने फिर दुआ करने शुरू कर दी। और लिखा 23वीं आयत को पढ़ी, चौथे बाब की। चौथा बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ी। यहां पर क्या लिखा? वो छूट कर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार कायन और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। और जब उन्होंने ये सुना तो यकदिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की। और क्या इल्तिजा किया? मालिक तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुद्र जो कुछ उसमें पैदा किया। ये खुदा की हाकमियत का इकरार कर रहे हैं। तूने रूहुल कुदस के वसीला से, किसके वसीला से? हमारे बाप अपने खादम दाऊद की जुबानी फरमाया, कौमों ने क्यों धूम मचाई, उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए, खुदावंद और उसके मसीह के मुखालफत को जमीन के बादशाह खड़े हुए और सरदार जमा होंगे, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यीशु के बरखलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पैंतुस पिलातुस और गैर कौम इसराइलियों के साथ इस शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ, गौर कीजिए लफ्जों पर, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहराया गया था वही अमल में लाओ। खुदा को पता था ये होगा, रिएक्ट होगा, तो अब क्या करना? आगे का फॉर्मूला वो खुदा से रिक्वेस्ट क्या करे, सुनिए। अब खुदावंद इनकी धमकियों को देख और अपने बंदाओं को ये तौफीक दे कि उन्हें अमेरिका का वीजा मिल जाए। लिखा है तेरे कलाम को इतने दे केस लगना चाहिए, सानू अमेरिका वाले फट वीजा देते थे विद फैमिली। सारी जान थ्रेट है, जिन्होंने नहीं खतरा वो भी लिख लिख के भेज देते हैं। सानू भी बड़ा खतरा है, सानू भी बड़ा डर है। और खुदा के लोगों को गौर कीजिए, बस प्लान ऑफ गॉड, खुदा का प्लान क्या है? इनको पता है कि खुदा तू वो है जिसने जमीन और आसमान और समुद्र जो कुछ है उसको पैदा किया। इसलिए हम जानते हैं तो चीजों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हम तुझसे कंट्रोल करने की दुआ नहीं कर रहे, बल्कि तुझसे अपने लिए तौफीक मांग रहे हैं कि इन हालात में भी, इन हालात में भी, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने लिए दुआ करें कि इन हालात में भी कमाल तरीके के साथ क्या करें, तेरा कलाम सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा। कौन हाथ बढ़ाए? तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा। ये दुआ है इनकी। जब इनको कोड़े पड़े हैं, जब इनको मार पड़ रही है, जब लोग इन्हें लान तान कर रहे हैं, जब इन्हें लोग बेइज्जत कर रहे हैं, ये डिसअपॉइंट नहीं हो रहे, ये मायूस नहीं हो रहे, ये खिदमत का इनकार नहीं कर रहे, ये कह नहीं रहे भाई जे पागल जाओ, मैं नहीं चर्चा था, मैं गला सुना देती। बड़ा औखा काम करता है। दे आर आस्किंग द गॉड, वो खुदा से तौफीक मांग रहे हैं, गिव अस मोर एंड मोर एंड मोर। क्यों? क्योंकि लूका लिखता है, आप लूका 21वें बाब को पढ़े, वहां पर लिखा है गतसमनी में क्या कर रहा है यीशु, उन्होंने देखा है, उन्होंने इधर आई सी, दे वर स्लीपिंग, लेकिन यीशु ने जगह जगह पे कह रहा है दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उन्हें याद है, उन्हें पता है जब यीशु परेशान था तो वो क्या कर रहा था, और बार बार उठा के की कर रहा है, जागो और दुआ। एक बार किया नहीं, दूसरी दफा फिर जाता है, तीसरी दफा फिर जाता है, और आखिरी दफा कहता है अब वक्त घड़ी आ पहुंची है। जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तहिद। मेरे अजीजों, अपनी रूह को मुस्तहिद कीजिए, अपनी रूह को एक जगह पर खड़ा कीजिए। जब तक रूह आपकी एक जगह नहीं खड़ी होगी, आप इसका चैलेंज को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लायक ही नहीं है। लूका के इंजील में ये लूका ने लिखा है, उसने कहा, यीशु ने कहा वो मेरे लायक ही नहीं है जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर देखे। और वो साथ में प्रैक्टिकली दिखा रहा है कि शागिर्दों ने हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ने की जुस्तजू की है और खुदा से तौफीक मांगी है। और क्या तौफीक मांग रहे हैं?
कमाल दलेरी के साथ तेरा कलाम सुनाए। क्या सुनाए? क्योंकि वो जानते हैं कि जब कलाम सुनाया जाएगा तो फिर क्या आएंगे? रिजल्ट्स आएंगे। हालेलुया। अमाल की किताब हमें ये सिखा रही है कि जब जब कलाम सुनाया गया और जब जब रूहुल कुदस की तहरीक में हम मूव करते हैं फिर रिजल्ट्स आते हैं। ईमानदारों गौर कीजिए। और जब ये लोग दुआ कर चुकते हैं, जब ये अल्फाज बोल चुकते हैं, तो फिर क्या मकान की नींव हिल जाती है और ये फिर एक दफा फिर रूहुल कुदस से भर जाते हैं। ये सेकंड टाइम है। 3 दफा ये रूहुल कुदस से भरते हैं। पहली दफा अमाल 2 बाब उसकी पहली आयत को पढ़िए। यहां पर फर्स्ट टाइम ये रूहुल कुदस से भर रहे, पढ़िए इसे। जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और इन्हें आग के शोला की सी फटी हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर के और गैर जुबानें। यहां पर क्या लिखा है? वो सब रूह कुदस से भर के। That's the first time. ये फर्स्ट टाइम अनाइंट हो रहे हैं। सेकंड टाइम कब अनाइंट हो रहे हैं? 4 बाब और 31वीं आयत। और थर्ड टाइम 5वां बाब। एक्चुअली आज मेरी क्लास नहीं थी तो मैं पहले से हवाले अपने पास डायरी रखता और मैं आपके साथ शेयर कर देता, लेकिन अचानक मुझे पता चला लेकिन मैं आपको बता दूंगा। मुझे टाइम दीजिएगा। ये थर्ड टाइम अनाइंटिंग है और थर्ड अनाइंटिंग का लेवल ये है क्योंकि कलाम में लिखा है 102 बेहतर है और तेरी डोरी किसी से नहीं टूटती है। दाऊद भी 3 दफा अनाइंट हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग चीज चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद को भी 3 दफा अनाइंट किया गया था। फर्स्ट टाइम पहला सामुएल उसके 16वें बाब है, जब सामुएल दाऊद यिशै के घर जाता है। हवाला चेक कर लीजिएगा। जब पहली दफा सामुएल यिशै के घर जाता है क्योंकि वो साउल से खुदा रूठ जाता है, सामुएल रूठ जाता है, तो खुदा कहता है तू उदास क्यों बैठा हुआ है? जा यिशै के घर जा, तेल की कुप्पी ले और वो शख्स जो मेरे दिल के मुआफिक है तुझे अनाइंट कर। फर्स्ट टाइम अनाइंट होता है। सेकंड टाइम जब दाऊद यहूदा का बादशाह बनता है। यहूदा का कबीला अलग होता है और इसके साथ बिन्यामीन का कबीला, ये 2 बार सल्तनत, जनूबी सल्तनत अलग होती है और शिमाली सल्तनत बाद 10 कबीले एक तरफ 10 कबीले एक तरफ। तो ये 2 कबीले दाऊद के साथ मिल जाते हैं और ये दाऊद को अपना बादशाह बनाते हैं और बाकी सल्तनत साउल बादशाह के पास। तो दाऊद को फिर अनाइंट किया जाता है। और थर्ड टाइम जब साउल की डेथ हो जाती है तो बाकी इसराइल के कबीले भी आकर दाऊद की पैरवी में बैठ जाते हैं और कहते हैं हम तू आज से हम तुझे अपना बादशाह बनाते। दाऊद को फिर से अनाइंट किया जाता है। 3 डायमेंशनल अनाइंटिंग मूव कर रही है। वक्त मिला तो फिर कभी शेयर करेंगे आपसे 3 डायमेंशनल अनाइंटिंग क्या होती है, लेकिन ये थर्ड डायमेंशन अनाइंटिंग का एक पहलू मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत को देखिए। यहां पर थर्ड डायमेंशनल अनाइंटिंग मूव कर रही है। पंद्रहवीं आयत को पढ़िए। यहां पर क्या लिखा हुआ? अमाल 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़ ले। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कोठरों पर लिटा देते थे ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही
में से किसी पर पड़ जाए और यरूशलेम की चारों तरफ से शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों को सिताए हुए को लाकर कसरत से जमा करते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। क्यों अच्छे कर दिए जाते थे? Because there was a third level of anointing. anointing का लेवल ये था पतरस पर कि अगर उसका साया ही पड़ जाता वो ठीक हो जाते थे। लोगों के इतने उनके अंदर इतना anointing फ्लो कर रही थी। आप इमेजिन कीजिए, पुराने अहदनामा में अगर एलीशा की हड्डियां मुर्दे को टच करती है तो मुर्दा उठ खड़ा होता है, तो ये सेकंड डायमेंशन था। उससे कहा तेरे रूह का दुगना मुझे चाहिए, लेकिन यहां पर थर्ड डायमेंशन ऑफ anointing है। यीशु ने कहा वो पानी जो मैं तुझे देता हूं, अगर तू मुझसे मांगती और तू उसे पीती तो तेरे अंदर से हमेशा की जिंदगी के चश्मे जारी हो जाते। हालेलुया। खुदा के लोग आइए, रूह के लिए जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। अगर आपने सिर्फ एलीशा की anointing का भी लोग कह रहे तेरे रूह का दुगना दुगना, ये थर्ड डायमेंशन बोल लीजिए। यहां पर सिर्फ साए में आ रहे हैं और लोग क्या हो जाते, शिफाएं पा रहे हैं। लोगों की तरस रहे हैं कि सिर्फ साया पड़ जाए। पतरस के बदन के कपड़े लिए जा रहे हैं, कपड़ों पर सेल लगती थी कि पतरस के जो कपड़े हैं, रुमाल, लोग अब अमाल की किताब आगे जाकर पढ़ेंगे, पौलुस रसूल से लोग रुमाल उसके बदन को लगा के कहते थे अपना पसीना पून कीजिए, अपने बॉडी से लगाकर हमें दे दे। हमारे बीमार में जब वो रखेते थे तो वो बीमार उठ खड़ा होता था। What a level of anointing, imagine कीजिए। क्या वजह थी? वो क्या खाते थे, वो क्या पीते थे, वो क्या पहनते थे, उनकी दुआएं क्या थी? That was a simple thing. They were following the Holy Spirit. वो रूहुल कुदस को फॉलो करते, और जब रूहुल कुदस को आप फॉलो करते हैं तो anointing का लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है। अब पहले स्टेप में हम देखते हैं अमाल दूसरे बाब में, जब ये मोते थे, एक दिल थे, दुआ कर रहे थे, तो रूहुल कुदस नाज़िल होता है और ये सब रूहुल कुदस से भर जाते हैं। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं 4 बाब और उसकी 31 आयत में, जब ये फिर दुआ कर रहे हैं, खुदा से तौफीक मांग रहे। क्या मांग रहे? लेकिन ये मांगने से होता है मेरे अजीजों, ये आपकी अपनी जस्तजू है। खुदा लिमिटेड नहीं है, लिमिटेशन आपने खुद सेट करनी है। इन लोगों ने अपने आप को लिमिटेड नहीं था किया, हालांकि इस लेवल पर चर्च की तादाद 5000 से बढ़ चुकी थी। उस वक्त तकरीबन चर्च की तादाद 5000 से ज्यादा हो चुकी थी। उन्हें कह सकते हैं तो बड़ी दुनिया हो गई, काफी ने नहीं सारा की करना। उस वक्त का चर्च जब दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा नहीं थी, और वो शहर जिसकी आबादी 10 से 20 हजार का शहर हो और उसमें से 3000 लोग सिर्फ खुदा की खिदमत करना शुरू कर दें। आप इमेजिन करें 30% पॉपुलेशन सिर्फ यीशु का प्रचार कर रही हो और रूह कुदस से भरपूर हो, तो उस शहर का क्या हाल हो? वो शहर तो पाखरू से भरा हुआ, वहां पर तो कोई नशा ही नहीं रहा, वहां पर तो किसी नशावर की जरूरत ही नहीं हो, क्योंकि हर 10 में से तीसरा आदमी तो रूह कुदस से मालूम था। और इस कदर उसे मालूम था कि खुदा के अजायब और उसकी कुदरत और उसके निशानात जाहिर हो रहे थे। लोग खौफजदा हो रहे थे कि ये खादम है, देखो नहीं छेड़ना, अगर इन्हों छेड़े तो जो जाए खुदा हमारी अदालत कर डालेगा, क्योंकि उन्हें पता था हननी और सफीरा की जान निकल चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ पाखरू की ओबीडियंस का नतीजा है, पाखरू की ताबेदारी का नतीजा है। इन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया है और वो थी ताबेदारी। इन्होंने जो कुछ शुरू से यीशु सिखाता और करता आया है उसको फॉलो किया। इन्होंने देखा कि उनका उस्ताद दुआ में टाइम गुजारता, उन्होंने दुआ में टाइम गुजारना शुरू कर दिया। इन्होंने देखा कि यीशु रूह कुदस की आगाही में चलता है, तो उन्होंने पाखरू से आगाही लेना शुरू कर दी। इन्होंने जब देखा कि यीशु रूह कुदस के लिए दुआ कर रहा है, खुदा के हज़ूर घुटने टेके हुए 40 दिन दुआ रोज़े में, तो इन्होंने दुआ रोज़े में अपने आप को ठहरा लिया। इन्होंने जब देखा कि यीशु रूह कुदस के नज़ूल का इंतजार कर रहा है और उसके इंतजार में उसने 30 साल गुजार दिए हैं, तो उन्होंने 120 की जमात ने भी दुआ रोज़े में 10 दिन गुजार दी। एवरीथिंग, हर चीज अमाल की किताब में आपको यीशु के फुटस्टेप पर फॉलो करते हुए नजर आएगी। हर शख्स यीशु के नक्शे कदम पर चल रहा है, और जब ये यीशु के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जब ये रूह कुदस की तहरीक में बढ़ रहे हैं, तो फिर इमेजिन कीजिए anointing यहां तक रुकती नहीं है।
मसा यहां तक रुकता नहीं है, मसा फैल रहा है, मसा गालिब आता जा रहा है। और मसा यहां तक गालिब नहीं रहा कि सिर्फ चर्च के सिर्फ पास्टर पतरस तक की बात नहीं। आप अमाल की 6 बाब को पढ़े और उसकी पहली आयत को मेरे साथ पढ़िए। उससे पहले 5वां बाब और उसकी 42वीं आयत को पढ़िए। और वो हैकल में और घरों में और हर रोज तालीम देते और इस बात की खुशखबरी सुनाते कि यीशु ही मसीह है, बाज न आए। क्यों ना बाज, क्यों बाज नहीं है? यहां पर चर्च बढ़ना शुरू हो जाए तो हो चर्च बढ़ गया, शुक्र है खुदा का, खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे 100 फैमिलियां दी है, खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे बहुत कुछ देता है भाई जी, खुदा का शुक्र है, खुदा ने सानू सब कुछ दिया। हाँ की करना है, लेकिन नहीं, इनके अंदर भूख है और इनके अंदर प्यास है, और इनकी भूख और प्यास का नतीजा क्या निकलता है? अगली आयत में लूका क्या लिखता है? पहली आयत में 6 बाब की। इन दिनों में जब शरीर बहुत होते जाते थे तो यूनानी माए यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खैरगिरी में इनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और इन 12 ने उन शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं रोक दीजिए, यहाँ पर लिखा है पहली आयत में, इन दिनों में जब शागिर्द क्या हो गए? क्यों शागिर्द बहुत बढ़ते जा रहे हैं? शागिर्दों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? उसकी वजह क्योंकि उनको याद है यीशु ने कहा था फसल बहुत है, मजदूर थोड़े। आज हमारे अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं, हम अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, हम लोगों पर रूल करना चाहते हैं, हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, और खुद ही अपनी सेल्फ प्रोक्लेमेशन है, सेल्फ सेंटर्ड है। और यही वजह है कि जब हम सेल्फ सेंटर्ड है तो सेल्फ सेंटर्डनेस वजह से चर्च ग्रो नहीं कर रहा, चर्च फैल नहीं रहा। चर्च को अगर आपने फैलाना है, चर्च की ग्रोथ देखनी है, तो फिर आपको लोगों को खुदा के रूह से भरना है, आपने मास्टर सर्वेंट लीडरशिप से निकलना है। आपने ये नहीं कहना कि मैं उस्ताद आता तो नौकर ना। आज हमारी ह्यूमन नेचर में ये बड़ी चीज कॉमन हो गई है कि हम आज भी उस तारीख दौर की तरह हम चाहते कि लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में बात करें, हमें ही वेल ऑफ करें, हर कोई जुबान पर सिर्फ हमारी ही तारीफ करे, हमारे ही बारे में बातें और हमें ही जलाल मिले। लेकिन नहीं, आप अमाल की किताब को पढ़ते, शागिर्दों ने कहीं भी किसी मौका पर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आने दिया, बल्कि उन्होंने हर दफा जलाल किसके नाम को दिया? उनकी दुआ को देखे उन्होंने दुआ में भी यही कहा कि हमें सिर्फ क्या कर कलाम सुनाने की तौफीक बख्शे। उन्होंने ये नहीं कहा कि साढ़े हाथ रखे मौत से होना शुरू, हमारे हाथ रखने से मुर्दे उठ खड़े, हमारे हाथ रखने से देखो कि आंखें खुल नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या तौफीक मांगी है? खुदा का कलाम। और कलाम कौन है? यीशु, खुदा का बेटा यीशु। क्योंकि यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, यूहन्ना की इब्तिदा में और कलाम क्या था? खुदा था। The word was God, खुदा खुद कलाम था। जब खुदा कलाम था तो हमने कलाम को मुनादी कर दी, और जब हम कलाम की मुनादी करते हैं तो फिर यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्रिएशन का काम होना शुरू होता है। प्लीज इस बात को लीजिए। इस वजह से शागिर्द बढ़ रहे और शागिर्दों के हाथ रखने की वजह से शागिर्द फैल रहे। लेकिन जब शागिर्द फैल रहे तो एक और चीज जो 6 बाब में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पर लिखा जब शागिर्द फैल रहे, चर्च ग्रो कर रहा था और तादाद 5000 से बढ़ चुकी थी चर्च की, तो इन लोगों ने क्या किया? आपस में झगड़े शुरू हो गए। शैतान यहां पर भी आके मिस नहीं कर रहा। ये मत भूलिए कि अगर आप रूह कुदस से फिल हो गए तो आपकी जिंदगी में चैलेंजेस खत्म हो गए, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। शैतान यहां पर भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, और डिस्ट्रैक्शन शैतान का सबसे बड़ा वेपन है। वो आपका ध्यान बटाने की कोशिश करेगा, और यहां पर भी यही हुआ। यहां पर झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा सादिया बेवा,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ देता। अरे पानी का गिलास को पुछ के था। शागिर्दों के पास लड़ाई इस हद तक हो गई, रोटियां तो चावल तो पानी तो, कि शागिर्दों के पास मसला कि पाजी तू ही फैसला करो। लेकिन कलाम में लिखा 4 आयत, लेकिन हम तो दुआ में और खुदा की कलाम की खिदमत में ही। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको इंपॉर्टेंस दी है? दुआ और खुदा के कलाम। उन्होंने कहा मैनेजमेंट करनी है तो आप ही को, अपने में से 7 आदमी चुनो। हमने किसी और काम में नहीं लगा। अमाल की किताब बड़ी डायरेक्शनल और वाज़ेह है मेरे अज़ीज़ों। इसमें स्ट्रेट डायरेक्शन एक ही है और एक ही जुस्तजू है, और वो जुस्तजू क्या है? खुदा के कलाम का फैलाव और रूह कुद्स से पाखरू की तहरीक में और उसकी हदायत में हमने मूव करना। उन्होंने कहा खुदा के पाखरू ने हमें सिर्फ दुआ करनी सिखाई, और ये सानू चंदा इकट्ठा करते नहीं लाया, उन्हें सानू रोटियां बरतानते नहीं लाया। ऐसे ही, क्योंकि वो जानते कि जब यीशु था जमीन पर खिदमत कर रहा था, तो एक शागिर्द यीशु के पास आया, उसने कहा ऐ खुदावंद, मैं जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। लूका 9 बाब को खोलिए, यहां पर वो जानते थे इस बात। लूका 9 बाब के एक वाक्य को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और उसकी 57 वर्ष, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाएगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भाटे होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह। फिर दूजा आ गया, फिर उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा खुदावंद मुझे इजाजत दे, पहले मैं अपने बाप को। तो उसने उनसे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर दे दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। इसे अंडरलाइन कीजिए। यीशु ने क्या टास्क दिया? शागिर्दों को क्या टास्क दिया है? गौर कीजिए। खुदा की बादशाही की खबर फैलाओ। There's a task। ये शागिर्दों का टास्क था। उन्हें मालूम था हमारा टास्क सिर्फ और सिर्फ दुआ और खुदा के कलाम की मनाती है। उन्हें ये बात याद थी। उन्हें ये बात नहीं भूली, क्योंकि उनके सामने एक और भी आया है और कहा है खुदावन मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर से लोगों को रुखसत करो, रुखसत हो, घर के लोगों से रुखसत हो। उन्हें कितनी इजाजत? याद रखिए, खुदा सेकंड ऑप्शन वालों को नहीं चाहता। जदौन को खुदा ने जंग के लिए बुलाया तो उसने कहा, जदौन ने कहा खुदा मैं कल नहीं जोगा नहीं हूं। खुदा ने कहा ठीक है, अपने नाल बंदे ला ले। गज़ात की किताब 7वें बाब में ये स्टोरी है। अपने साथ आदमी मिला ले, आवाज दे कि रब्बुल फ़ाइज़ ने मुझे बुलाया है और कौन मेरे पीछे पीछे जंग को चलेगा। 22,000 लोग इकट्ठे, 32,000 लोग इकट्ठे हो। वाजिब खुदा ने बुलाया, रोटियां खाण को खुलियां मिल रही ने, खुला चंदा आंदा, रातों रात अमीर हो जाता। बड़ा बिजनेस जिन्हें हाथ रखिए 5,000 इस्लामी किलो, 10,000 लोग बजे चंदे कि लखा न करोड़ों का चंदा देते हैं। आह तो अज टीवी तो वेख्या लोग घर भी बेच के दे जाते हैं, पार्टनर बनते हैं। असं भी काम शुरू कर रहे, लेकिन जैसे ही जदौन ने तो खुदा ने कहा नहीं, ये आदमी ज्यादा है, इनके अंदर ये मनादी करके जो खौफजदा जो हरासा है, जिन्होंने डर लगता है बदलुआ तो कि सामने चपड़ जाए, कि असी हाथ रखा तो कि साढ़े च ना हाजरी हो जाए, रात सामने ना सौन कर और वापस चले जाओ। और लिखा है 10,000 वापस मुड़ गए। फिर खुदा ने कहा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा ऐलान कर, जिनका दिल हरासा है, जो डर है, खौफजदा, जिनकी मंगनियां शादियां वापस तोड़ दें, वही तोड़। फिर खुदा ने कहा ज्यादा, उससे कहा इनको नीचे लेकर और पानी पिला, और जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ पानी पीते। यहां तक टाइम नहीं दिया कि बनिया पानी पी। इस कदर
बादशाह की इंपॉर्टेंस है खुदा के नजदीक, उसके कलाम की बादशाह की खुशखबरी फैलाने की अहमियत इस हद तक है कि पानी पीने के लिए भी प्रॉपर बैठने की इजाजत नहीं थी, बल्कि फौरन से पहले पानी पिए और जंग के लिए पहुंचे। एक सेकंड का भी डिले अलाउड नहीं था, और जो 1 सेकंड का भी डिले अलाउड नहीं था वो सिर्फ 300 लोग निकले थे। क्यों शागिर्द इस मामले में इतने सेंसिटिव थे? और उनके सेंसिटिव होने की बड़ी वजह द अनॉइंटिंग वाज ऑन देम, उनके ऊपर मसा ठहरा हुआ था। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, खुदा के पाक को रंजीदा ना करो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ईमानदारों सीधे तो घरों निकलते टाइम लग जाता, चर्च ना जाता, जितने घरी घरों निकलने। हमने जान क्या करनी है? ओह सॉरी चीजें, ओह चलो 2 गीत गाए हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं शागिर्द बना जाता, ऐसे अनॉइंटिंग नहीं ठहरती। आप अमाल नाले बाप को पढ़िए, वहां पर 14वीं आयत में लिखा है, वो फौरन पहाड़ से जैसे यीशु उठाया गया वो नीचे उतरा। दे वो वेरी इन अ हरी, वो बहुत जल्दी में थे। ग्यारहवीं से मैं पढ़ रहा हूं, पहला पद। इनके पास फरिश्ता आया और कहने लगा, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते? यही यीशु जो तुम्हारे पास से उठाया गया इसी तरह फिर आएगा, जिससे तुमने उसे आसमान पर से जाते देखा। तब उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासले पर यरूशलेम को फिरे, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े। कारगे घर गए कोई जिन्हें हर सारे घर तोड़ के रोटी खा के आते और सामान ले आइए, कपड़े बदल आइए, मुंह तो वाली भाई साहब शेव नहीं कर रही, भाई साहब कपड़े नहीं ले, मेरी जूती टूटी इससे। नो, बहुत सारी एक्सक्यूजेस हो सकती थी, लेकिन दे डोंट वांट टू मिस जीसस। वो यीशु को मिस नहीं थे करना चाह रहे। पौलुस फिलिप्पियों 3 बाब में लिखता है 14वीं आयत में, मैं उस नाम के लिए दौड़ा हुआ चला जाता हूं जिस नाम के लिए खुदा ने मुझे पकड़ा है। जो चीजें मैं पीछे छोड़ चुका हूं उनको भूलता जा रहा हूं। उसको वरीड नहीं है कौन मिस हो रहा है, उसको सिर्फ एक ही चीज की फिक्र है और वो यीशु है। प्लीज इस बात को लीजिए। आज हम अनॉइंटिंग चाहते हैं, आज हम खुदा से मसा मांग रहे होते हैं, हम रोजों में ठहरे होते हैं, लेकिन क्या हम इस काबिल भी हैं कि नहीं है? ये बड़ी जरूरत है आपको पहले अपने आप को इस काबिल बनाना, और जब तक आप इसके काबिल नहीं होंगे वो आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। वाहिज की किताब में लिखा है, जब कुल्हाड़ा कुंद होता है तो ज्यादा जोर लगता है। जब कुल्हाड़ा कुंद होता है तो ज्यादा जोर लगता है। खुदा कुल्हाड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे शार्प चाहिए, शार्प। और शार्प करने के लिए अमाल की किताब लिखी गई है, मुझे और आपको शार्प करने के लिए, मुझे और आपको सिखाने के लिए कि हम शार्प कैसे हो सकते हैं, हम कैसे खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, कैसे डूनामाइस की कुदरत, ओ जिसके अंदर इस कदर कुदरत है कि वो घिरे हुए इंसान को आसमानी बना देती है, जो अपने आप के बारे में सोचने वाले को खुदा का जलाली मकदस बना देती है, जिसे किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को ये नहीं सिखाने की जरूरत है गड्डियां लगा देने, बसा लगा देने, हमारे पास इतना पैसा होगा तो हम फिर मनाती करेंगे, बल्कि खुद ब खुद लोग खुद से बगैर पब्लिसिटी के, बगैर प्रमोशन के, बगैर क्लिप्स के उनके पास चले आते हैं और मालदार अपना माल और दौलत उनके कदमों में लाके रख देते। उसकी बड़ी वजह there was only one thing that was creating difference मेरे अजीजों, वो था Holy Spirit, खुदा का पाखरू। क्योंकि आसमान पर जाते हुए यीशु ने एक ही चीज कही थी। अब मेरे से पहला बाप और उसकी 6वीं आयत को पढ़ी।
बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा, ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता कर देगा? शायद इस वक्त तक यही समझ रहे थे कि जब मसीहा आएगा हम दाऊद की तरह दोबारा राज करेंगे। लेकिन ये राज सिर्फ जमीन की हद तक महदूद नहीं था, ये बल्कि आसमान और जमीन दोनों पर राज है। और यीशु के ज़हनों को खोल रहा है और उससे कहा, इन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो यू विल गेट द पावर। आपको क्या मिलेगी? कुव्वत मिलेगी। रूहुल कुदस के लफ्ज जहां पर बन रहा है, आप इसे प्लीज घर जाके जरूर चेक कीजिएगा, पहले 6 चैप्टर्स को पढ़िएगा भी और इन पर गौर भी कीजिएगा और इन्हें पुराने बाइबल की बाकी अंजील मुकद्दसा से सीखिएगा कि आपकी जिंदगी में क्या देखिएगा, डिफरेंस क्रिएट होगा। आपको वो चीजें याद आएंगी कि रूहुल कुदस जब नाजिल होता है तो फिर कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता, बल्कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होना शुरू हो जाते हैं। लोगों के नजदीक ये चीजें बज़ाहिर इम्पॉसिबल थी। जब पहली दफा रूहुल कुदस नाजिल होता है तो इर्द गिर्द के लोग कहते हैं इन्होंने नशा किया हुआ, ये नशे में धुत है। अमाल दूसरे बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, बाज ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताजा नए के नशा में है। ये अनपढ़ लोग हैं क्योंकि ये 16 जुबानें बोलने वाले लोग थे, 16 मुल्कों से ताल्लुक था इनका और हर किसी को यही फील हो रहा था ये मेरी ही जुबान बोल रही। और इस जुबानों में क्या जिक्र हो रहा था? खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र हो रहा था। लेकिन क्यों हो रहा था? उसकी बड़ी वजह, क्योंकि जिस पत्थर को रद्द कर दिया गया था वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया था। और जिन लोगों ने निजात को कबूल किया था उनकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये हर रोज खुदा की हम्द करते। मेरे चीजें एक चलते चलते आखिरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी बनाना ठीक चाहते हैं, अगर हम वाकई शागिर्दों की तरह सुपर नेचुरल चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जब मनादी करें तो लोगों के दिलों पर वाकई चोट लगे, जैसे पतरस के सरमन में चोट लगी थी, तो एक चीज को नोट भी कीजिए और इसे अपनी जिंदगी में रख भी लीजिए। अमाल 2 बाब और उसकी 45, 46 और 48 आयत तक पढ़े। और ये रसूलों से तालीम पाने और नहीं 46 है, 45 से मैं कह रहा हूँ। 45 और अपना माल और असबाब बेचकर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम करते और सब लोगों को अजीज थे जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। इन 2-3 लाइनों में आयात में मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनको प्लीज नोट भी कीजिए और इन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी खिदमत इफेक्टिव हो, आपकी खिदमत रिजल्ट ओरिएंटेड हो और आपकी खिदमत के वसीला से खुदा के जलाली काम ज़ाहिर हो, तो पहली चीज नोट कीजिए। 45वें आयत में लिखा है, अपना माल और असबाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कभी अपने माल की फिक्र नहीं की। अगर उनको कोई चीज प्यारी थी तो वो खुदा था। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लूका के इंजील में यीशु ने कहा तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। और जो दौलत का लफ्ज लूका के इंजील में इस्तेमाल हुआ है वहां पर यूनानी शामी देवता एरामी देवता महमत है। हमने तर्जमा दौलत किया हुआ है लेकिन वहां पर यूनानी देवता महमत है। एराम का देवता था महमत, इसे दौलत का देवता कहते हैं। MAMMOT तर्जमा स्पेलिंग बोल देता हूँ, लिख लेना रेफरेंस भी बोल देता हूँ।
नहीं तो नोट कर ले, नेक्स्ट टाइम अगली खुद को जो क्लास मैंने खुद लेनी है मैं आप लोगों को बता दूँ। मुझे हवाला नहीं मिल रहा, प्लीज सर मुझे बता दीजिएगा। सॉरी टाइम कम है, मैं कुछ चीज़ें मजीद शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये दौलत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप उसकी बादशाही के वारिस और उसकी पाक की पावर को एंजॉय नहीं कर सकते जब आपके नज़दीक दौलत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज भी उन सब लोगों का ईमान का जहाज अगर खो चुका है, तो 6 बाब और उसकी 19 और 20 आयत को उधर जाके जरूर पढ़िएगा, नोट कर लीजिए। वहां पर लिखा हुआ है जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, लव ऑफ मनी। अगर आपको दौलत से प्यार है तो आप खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि दौलत जमीन से है और खुदा आसमान से है। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, दौलत जमीन से है और खुदा आसमानी चीजें जमीन की नहीं है। There is a difference between hell and heaven. जमीन और आसमान में फर्क है। हम रूहानी, हम जिस्मानी नहीं है। आसमान पे जो करेंसी चलती है उसका नाम ईमान है। अगर आपको आसमानी करेंसी चाहिए तो आपको जमीनी करेंसी से दस्तबरदार होना है। गेट आउट ऑफ द लव ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की दौलत से, उसके ऐश से निकलना होता है। इन लोगों ने सबसे पहला काम ये किया था, नोट कीजिए, इन्होंने सारा माल ही बेच छड़े, उन्होंने जान ही छुट्टी, सादा दिली से रोटी खा रहे थे। किसी ने फिक्र नहीं की थी कि मेरे ने मरबे से मेरी एडी अच्छी नौकरी से, बिकॉज उनके पास एक ही चैलेंज था, दैट वाज क्राइस्ट, यीशु को जानना, उसके पाखरू से करना। दूसरी चीज आपको 47वीं आयत में मिलती है, खुदा की हमद करते थे। They were the worshipper of God। मेरे दिलो, इस जमीन पर सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपके होठों से उसकी सताइश के नगमे खत्म हो गए, ना खत्म हो, तो कोई चीज आपसे आपकी बरकत को छीन नहीं सकती। शैतान आपसे सब कुछ छीन सकता, He can snatch everything, लेकिन आपके होठों से आपकी सताइश को शैतान नहीं छीन सकता। दाऊद की अनाइंटिंग का राज ये था, he was a worshipper। और खुदा ने, यीशु ने खुद सामरी औरत को यही सिखाया था। अब वक्त आता है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। Try to become a true worshipper of God। अगर आप खुदा के सच्चे परस्तार बन गए तो यकीन जानिए, nothing can overcome you। कोई चीज आप पर गालिब नहीं आ सकती। मैं जब ज़बूर की किताब पढ़ाऊंगा उसमें आपको सिखाऊंगा how can we become a worshipper of God। हम खुदा के कैसे परस्तार बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, वर्शिप आपकी जिंदगी से चेन्स को तोड़ देती है। अमाल की किताब में जब पौलुस और सिलास को अमाल 16 बाब में जंजीरों से जकड़ दिया गया था, they were on the death sentence, उन्हें खबर थी, उन्हें पता चल गया था सुबह उन्हें सर कलम कर दिया जाएगा, उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा चलो सही, आज आखिरी वर्शिप करके जाइए। हालेलुया। लास्ट नाइट देयर वाज द नाइट ऑफ वर्शिप। अगर मनु या तो किसी को पता चल जाता आज तेरी आखिरी रात है, कहीं रो मर गई, अपने बच्चों को दस दवा, अपनी नाल दी वसीयत कर दवा, और बच्चों का ख्याल रखी, और फलानी जगह पैसे रखे सन, और मेरा जो सोना ही उन्होंने दे दी, मेरे हाथ की जी मुंडी उन्होंने मेरे कपड़े उन्होंने वंड दी, और नहीं, they were giving glory to the God। उनकी जिंदगी में खुदा का जलाल इंपॉर्टेंट था। और आज भी वर्शिपर वही वर्शिपर है जो सारा जलाल यीशु को देता है, क्योंकि मुकाशवा में यही तो लिखा है, बगैर आराम किए क्या बोल रहे, तू ही इज्जत के, तमजीद के, कुदरत के, जलाल के, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। सिर्फ एक ही है जो डिजर्व करता है। वो बता रहे हैं हमें
کہ اگر کوئی ورشپ کو ڈیزرو کرتا ہے, اگر کوئی تمجید کو ڈیزرو کرتا ہے, تو that is only one, وہ ہے اعظم سے ذبح کیا ہوا بڑا خدا کا بیٹا یسوع مسیح. ہلیلویا. اور ضروری ہے اگر آپ ورشپر ہیں تو nothing can overpower you. ایک اور چیز سب سے آخری اور لیسٹ, not the least, یہ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے. یاد رکھیے, ایک سے دو بہتر ہے اور تیری جوڑی کسی سے نہیں جڑتی. متی کی انجیل میں یسوع نے کہا جہاں دو یا دو سے زیادہ, دو یا تین میرے نام سے جمع ہو جائے, ان کے بیچ میں کیا ہو موجود. یونٹی میں خدا ہے, خدا یونٹی میں خوش ہوتا ہے. شیطان کا اگر کوئی ویپن ہے تو وہ سب سے پہلے یونٹی کو توڑتا ہے. He knows, اسے معلوم ہے جب یونٹی ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا. یونٹی کو اپنی زندگی میں لیجیے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا سے کہیے, خدا بول I need a man of prayer, مجھے وہ آدمی ہے جس کے ساتھ میں متفق ہو سکوں, وہ لوگ دے جن کے ساتھ میں متفق ہو کر دعا کر سکوں. اور کلیسیا دے وہ مسجد ہے جہاں پر واقعی دعا ہو. اور میرے عزیزوں, جب آپ کی زندگی میں دعا اور دعا یا یونٹی آ جائے گی, you will see the results. یہ تین چیزیں تھیں لوگوں کی زندگیوں میں جس نے پورے یروشلم کو ہلا دیا ہے. پہلے 6 چیپٹرز میں صرف چرچ یروشلم تک ہے اور انہوں نے صرف یروشلم کو ہلایا ہے. انہوں نے یروشلم کی کلیسیا کو, چرچ کو موو کر دیا. صرف 10,000 لوگ تھے اور ان 10,000 میں سے آدھا چرچ یروشلم کے یہودی یسوع کو قبول کر چکے ہیں. 50% لوگ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اتار چکے ہیں اور یہ خدا سے تازگی کے دن مانگ رہے ہیں, یہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. کیونکہ جب بھی پطرس کلام کرتا, لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگتی تھی. They will feel, انہیں ایسا فیل ہوتا تھا. یہاں پر جو چوٹ کا لفظ ہے دوسرا باب اور اس کی 37 سے آئے, یہ یونانی زبان میں جس کا ترجمہ ہوا ہے اوریجنل ٹیکسٹ میں, اس لفظ کا مطلب ہے کسی تیزدار آلے سے دل کے اندر چھید کر دینا, ڈیپ ہول کر دینا, گہرا سوراخ دل میں ہو جانا, جس سے دل انسان کے جسم کا سب سے نازک حصہ ہے. اور لکھاری لکھ رہا ہے کہ جب پطرس نے کلام کیا تو ان کے دل پر اتنی گہری ضرب لگی کہ وہ چیخ اٹھے, وہ چلا اٹھے, ان کو ہٹ ہوئی چیز اور وہ گھٹنوں کے بل ہو گئے. اور یہ اس وقت ہی ہوگا, یہ اس وقت ہی ہوگا جب وی نو, جب ہم اس کے پلان کو ایکسپٹ کریں گے, جب ہم اس کی فیلنگز کو لیں گے. میرے عزیزوں, ایک اور چیز, کتنا ٹائم ہو گیا پلیز مجھے بتائیے گا, پھر نہیں تو کلوز کرتے ہیں 5 منٹ. اچھا ایک اور چیز نوٹ کیجیے, چیپٹر 1 کا چرچ ایک ڈیڈ چرچ. جب روح القدس نہیں تھا تو لوگ مردہ تھے. There was no power. ایک آرڈنری ورشپ تھی, آرڈنری پریز تھی, لیکن ریزلٹس نہیں تھے. کہہ رہے تھے شکر یہ وعدہ کرو, لیکن شکر نظر نہیں آ رہا. کیونکہ شکر ادھر ہی دلوں ہوتا ہے جدوں کوئی بڑے شکر گزاری اندر آئے. That was a dead church. لیکن جب روح القدس آیا تو روح القدس نے طوفان کی طرح ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور طوفان کی طرح جہاں پر سناٹا تھا وہاں پر ہلچل مچ گئی ہے. جہاں پر خاموشی تھی اور تاریکی کا قبضہ تھا وہاں پر روشنی جگمگا اٹھی ہے, وہاں پر آگ اتر رہی ہے اور لوگ اس آگ کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ چرچ جنہوں نے کبھی حاضری نہ لائے, جنہاں دل نہیں دعا کرنا, آج وہ آنسوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے, ان کی دعائیں نہیں رک رہی. آمین تے کرن تو دل کر رہے لیکن آمین نہیں ہو رہا. اور اس کی بڑی وجہ that was the Holy Spirit. روح القدس ڈیفرنس کریٹ کرتا ہے. آپ چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کو اسٹڈی کریں, آپ کو چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 میں ایک چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ چیپٹر 1 میں خاموشی ہے,
लेकिन चैप्टर 2 में ये खामोशी तूफान में बदल गई है, आंधी और शोर में बदल गई है, तेज हवाओं में बदल गई है, आग के शोलों में बदल गई है। चैप्टर 1 में कोई किसी को नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता यीशु किथे है। लेकिन चैप्टर 2 में पूरे यरूशलेम की फिजाओं में, गली मोहल्लों में और घर घर में गूंज उठा है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आ खड़ा हुआ है। हालेलुया। वजह क्या है? क्योंकि रूहुल कुदस मूव कर रहा है, रूहुल कुदस हरकत में आया हुआ है। और जब रूहुल कुदस हरकत में आ रहा है तो फिर शिफा का काम हो रहा है, फिर मौत से हो रहे हैं, फिर आंखों के आंसू पोंछे जा रहे हैं, फिर जिंदगी में ताजगी आ रही है, फिर लोगों की जिंदगियां बदल रही है, फिर लोगों के अंदर से गम, खौफ और घाटा जाता रहा है और हर आदमी शादमान है। They are enjoying it, they are celebrating it और सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक आखिरी पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूं, बाकी कल करेंगे। चैप्टर 6 तक ही मैं पहुंच सका हूं। मिनिस्ट्री फैलती है, मिनिस्ट्री सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं रहती है। जब आप अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो फिर खुदा के यहाँ ना कोई मर्द रहता है और ना कोई औरत रहती है, ना कोई सीनियर रहता है और ना कोई जूनियर रहता है, बल्कि सब के सब खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। और यही वजह है छठा बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़िए। यही वजह है और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बढ़ता है गया। यही वजह है फिर खुदा का कलाम फैलना शुरू हो जाता है। जहां पर औहदे खत्म हो जाते हैं, जहां पर छोटे बड़े का फर्क खत्म हो जाता है, वहां पर खुदा का कलाम फैलना शुरू हो जाता है। क्योंकि लूका कहता है, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा है, हर एक ऊंची घाटी जो सी है नीचे खींच जाएगी, टीले हमवार होंगे, ऊंचा नीचा नहीं देता। जब खुदा आता है तो फिर सब कुछ बैलेंस हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है, ये लूका रिपीट कर रहा है। और लूका जो कुछ लूका की किताब में बोल रहा है वही अमाल की किताब में दिखा रहा है। हर एक ऊंची घाटी और हर एक टीला बैलेंस हो रहा है। क्यों बैलेंस हो रहा है? क्योंकि खुदा का कलाम था। और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बढ़ता चला गया, चर्च ग्रो कर रहा है और कायनों की बड़ी ग्रोह इस नींद के तहत हो गई। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये लोग लॉयल्टी के साथ, बगैर किसी लालच के साथ दिलो जान से खुदा की खिदमत कर रहे, उसकी हम के गीत गा रहे, सताइश कर रहे, तो इनके दुश्मन भी इनके दोस्त बन रहे हैं। ये वही काहिन थे जो अमाल 4 बाब में पतरस और यूहन्ना को धमका रहे होते, खबरदार आज तुम आज यीशु का नाम लेकर मनादी नहीं करनी, खबरदार किसी ने हाथ रखा तो हम तो इतने बंदे ठीक कर जाते हो। लेकिन आज यही इनके शागिर्द पड़ गए। ये आज इन्हीं शागिर्दों के कदमों में आके बैठ गए हैं कि आप सच कह रहे थे और हम झूठे हो गए। हालेलुया। मेरे अजीजों प्लीज आइए अपने पैरों पर खड़े और स्टिफनेस की तरह फजल और कुव्वत से भरने के लिए दुआ करेंगे ताकि लोगों में बड़े बड़े अजायब नज़र हो। हालेलुया। पहले 6 चैप्टर्स मैंने कोशिश की कि मैं कवर करूं, लेकिन मजीद हम नेक्स्ट बुक में आइए अपने हाथ पर खड़े और दुआ करें। आइए दुआ करें, जो कुछ सीखा है उसके लिए दुआ करें। हालेलुया। आइए प्लीज अपनी